So students, we had started a chapter, the 100 dresses, and we had covered the part 1 of it. And so far what we have read is that there is a Polish girl whose name is Wanda Petronsky, and she and her family, they have moved to America, and there she takes admission in a school, and those American students find her a bit different. Her name was a bit unusual by their standards, and her name was Wanda Petronsky. So she was often she you can say injustice was kind of injustice was meted out to her, and the girls in that room 13 used to make fun of her. And in this specifically two girls have been mentioned, Peggy and Maddie. Those are close friends. Peggy is quite popular girl, she is pretty, she has many good dresses, and she is very popular in room 13, and Maddie is her closest friend. So Peggy had started a game with Wanda Petronsky. She used to ask her how many dresses she had, and Wanda used to say that she had 100 dresses in her closet. But daily Wanda Petronsky used to wear only one faded blue dress. That means she didn't have any other dress, and that's why girls used to make fun of her because they believed that she was telling a lie. And Maddie was the inseparable friend of Peggy, and she didn't like the idea of Peggy making fun of Wanda Petronsky. She wanted Peggy to stop that fun making of Wanda, but she didn't have the courage to go and say this to Peggy, because she dreaded herself. She thought that she could be the next target of the girls if she tried to stop them. And then there is a talk of competition about Wanda Petronsky. It has been told to us that she was a very quiet girl. She didn't used to speak much, and she used to sit you can say in a corner of the class where rough boys used to sit. And there was a competition also in the school. For boys it was a motorboat competition, and for girls it was a dressmaking competition. And all the other girls had submitted one or two designs, but Wanda Petronsky had submitted 100 designs. And Peggy was hoping that she would win the competition as usual, but this time when Miss Mason, their teacher, announced the result, then it was found that a girl who had submitted 100 designs and all were worthy of winning was Wanda Petronsky. But Wanda was not coming to school for a couple of days. So the girls got really surprised on seeing Wanda Petronsky's drawings. So from here on we are going to read the part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास उस रूम में चक्कर मतलब एक लाइन बना के उन सभी ड्राइंग्स को देख रहे थे, तो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मॉनिटर आया और मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया. मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while, and then she clapped her hands. मिस मैसन ने उसे कई बार पढ़ा ध्यान से, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से उन्होंने एक बार क्लैप किया क्लास का अटेंशन अपनी ओर लाने के लिए. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. तो वो कहने लगी कि क्लास ध्यान दो और सभी अपनी अपनी सीट्स पर वापस चले जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father and I want to read to you. तो जब पैरों की घिसटने की आवाज़ें रुक गई थी और रूम में बिल्कुल शांति छा गई थी, तो मिस मैसन ने कहा कि मेरे को वेंडा के फादर से एक लेटर मिला है और मैं तुम सब लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसन एक पल के लिए वहाँ खड़ी हो गई और रूम के अंदर जो चुप्पी छाई हुई थी वो मतलब एक तनावपूर्ण वहाँ माहौल बन गया, और बड़े एक्सपेक्टेंट मतलब उत्सुकता के साथ बच्चे उनको सुनने के लिए रेडी हो गए. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो मिस मैसन ने क्या किया, अपने ग्लासेस को स्लोली उन्होंने एडजस्ट किया और बड़े ध्यान से और जानबूझकर, और इस तरीके से उन्होंने ये इंडिकेट किया, मतलब बच्चों को ये लगने लगा जिस तरीके से उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया कि जो बात वो कहने जा रही है और वेंडा के फादर ने जो लेटर भेजा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर कोई जो है वो बड़े ध्यान से वो सुनने के लिए तैयार हो गया. तो मिस मैसन ने पढ़ा जो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. Now we move away to big city. No more holler Pollack. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronsky.
तो देखिए वेंडा पेट्रोन्स्की के फादर का नेम जैन पेट्रोन्स्की था, तो उन्होंने कहा कि मेरी वेंडा आपके स्कूल में आगे से नहीं आएगी मैम, और जैक भी जो है वो नहीं आएगी, और हम लोग एक बड़े शहर जा रहे हैं और आगे से कोई भी, पोलेक जो नाम था एक यू कैन से एक डेरोगेटरी टर्म था, ये एक इंसल्टिंग वर्ड था जो पोलैंड के लोगों को चिढ़ाया जाता था, और होलर का मतलब जोर से आवाज़ लगा के कोई भी उन्हें चिढ़ा देता था। तो कहता कि आगे से ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा ऐसे बोल के, और कोई भी नहीं पूछेगा कि फ़नी नेम क्यों है मेरी बेटी का, क्योंकि बड़े शहर जहाँ जाएंगे वहाँ काफ़ी फ़नी नेम्स होंगे, तो इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। और जैन पेट्रोन्स्की का ये लेटर आया। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. तो इस लेटर को पढ़ने के बाद एक गहरी उस कमरे में चुप्पी छा गई। मिस मैसन ने अपने ग्लासेस उतारे, उनके ऊपर फूंक लगाई और उनको अपनी सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ से वाइप कर लिया। Then she put them on again and looked at the class. उसके बाद उन्होंने वापस अपने ग्लासेस लगा लिए और क्लास की तरफ देखने लगी। When she spoke, her voice was very low. और जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज़ बड़ी धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. तो मिस मैसन कहने लगी कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूम 13 के अंदर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जानबूझकर और किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, because his her or her name happened to be a long unfamiliar one. सिर्फ इस बात की वजह से कि किसी लड़की का नेम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नेम था और थोड़ा अनफेमिलियर नेम था, इस बात की वजह से कोई उसकी इंसल्ट नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है क्लास पे। आई प्रिफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। तो मैं ये सोचना चाहूँगी कि जो कुछ भी हुआ वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ वो थॉटलेसनेस में हुआ, मतलब वो कोई सोची समझी साजिश किसी की नहीं थी, बल्कि थॉटलेसनेस के साथ कर दिया गया, मतलब जैसे बिना सोचे समझे बच्चों ने मजाक कर दिया। I know that all of you feel the way I do and that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. तो मुझे लगता है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा ही तुम लोग सब फील कर रहे हो, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत सैड और अनफॉर्चुनेट बात है जो हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बारे में ज़रूर सोचें। The first period was a study period. Mary tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. पहला जो पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था, और मैरी ने जो अपने लेसन्स पे प्रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो आज मन था वो अपने काम पे नहीं लग पा रहा था। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. तो आज उसको अपने स्टमक में थोड़ा सा ऐसी फीलिंग भी हो रही थी जैसे कि उसको लग रहा था वो बीमार हो रही है, और ये बात सच है कि हालांकि उसे अच्छा नहीं लगता था जब उसकी फ्रेंड पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी ड्रेसेस को लेकर, लेकिन उसने भी तो कुछ नहीं कहा था। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. तो वो सोचती है कि हाँ, हालांकि मैंने कुछ उसका मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन मैंने कुछ किया भी तो नहीं था अपनी फ्रेंड को रोकने के लिए, और मैं चुपचाप खड़ी ये सब सुनती रही थी, देखती रही थी, और ये बात भी तो इतनी बुरी थी जितनी मेरी फ्रेंड पैगी ने की। मतलब उसका वेंडा का इंसल्ट करना और मेरा चुपचाप उसे ऐसा करते रहने देना, वो दोनों ही तो इक्वली मतलब ख़राब बातें थी, और वो तो उससे भी ख़राब बात थी जो मैंने ऐसा हो जाने दिया। मैं एक डरपोक लड़की थी, और कम से कम पैगी को तो नहीं पता था कि वो गलत कर रही है, मुझे तो पता था ना कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो वो इस बात को लेकर सोचने लग जाती है, गिल्ट फील करने लग जाती है मैडी, और वो अपने आप को वेंडा की जगह रखकर देख सकती थी, मतलब सोच सकती थी कि उसे कितना ह्यूमिलिएशन फील हुआ होगा। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. तो वो सोचती क्या वो कुछ भी नहीं कर सकती अब जो हुआ उसको सुधारने के लिए। काश वो एक बार वेंडा को बता देती कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो मुड़ी और एकदम से चोर नज़रों से मतलब पैगी की तरफ देखने लगी, तो पैगी जो है वो ऊपर नहीं देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी स्टडी कर रही है, काफ़ी अच्छे से उसमें बिजी है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। वो सोचती है कि चाहे पैगी को बुरा लगा नहीं हो या ना लगा हो, लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ करना होगा। She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest and they had
thought and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. वो सोचते कि चाहे पैगी को बुरा लगा हो चाहे ना लगा हो, लेकिन मैडी सोचते कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा, शायद वो अभी तक ये जगह छोड़ के नहीं गई होगी, मे बी पैगी मेरे साथ चलेगी बॉगिंस हाइट्स पे और हम लोग वेंडा को बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है, हम उसे ये भी बताएंगे कि वो स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस काफ़ी ब्यूटीफुल है. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जब स्कूल डिसमिस हुआ आफ्टरनून में तो पैगी ने कहा बनावटी कैजुअलनेस दिखाते हुए, मतलब वो इस बात की कोई परवाह नहीं कर रही कि वेंडा जा रही है या नहीं जा रही. वो कहती अरे चलो देखते तो है कि वो बच्ची जो है वो टाउन छोड़ के गई है क्या नहीं गई है. मतलब पैगी को भी ये फील हो रहा था गिल्ट इस बात का, बट शी वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग, शी वॉज नॉट शोइंग इट. She was not wearing her emotions on her sleeves. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. तो Peggy भी वही सोच रही थी. Maddie जो है वो खुश हो गई इस बात से कि Peg जो है वो सच में सही कह रही थी कि हमें जाके देख के आना चाहिए. The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of the town that was such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो दोनों लड़कियां तेजी से बिल्डिंग के से बाहर निकल गई और उस गली की तरफ, उस स्ट्रीट की तरफ जाने लगी जो कि बॉगिंस हाइट्स की तरफ जाती थी. शहर का ये वो हिस्सा था जहाँ पे बड़ा डरावना सा आप ये कह सकते थे कि माहौल रहता था इस नवंबर आफ्टरनून में. वहाँ हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजली, यू कैन से डिस्मल का मतलब एक अपशगुन वाला, एक निराशा वाला सा माहौल वहाँ पे बना रहता था बॉगिंस हाइट्स की तरफ. तो वहाँ वो लड़कियाँ चल पड़ती है. वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. तो पैगी जो है वो थोड़ी सी रूखे स्वर में कहती है कि देखो मैंने कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा, उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, और मुझे तो इतना भी मैं नहीं सोच सकती थी कि उसके अंदर इतनी सेंस है कि उसे पता चल जाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. मतलब उसके अंदर तो इतनी भी सेंस नहीं थी और मुझे लगा कि वो बड़ी ही डम है, मतलब वो बुद्धू सी लड़की है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं. और देखो तो कितनी बढ़िया ड्राइंग कर सकती है, मैं तो उसे कुछ समझती नहीं थी. मैडी कुड से नथिंग. ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा. मैडी कुछ भी नहीं कह पाई और उन्होंने सिर्फ यही उम्मीद की कि शायद वो वेंडा को ढूंढ ले. शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस. She and Peggy would fight anybody who was not nice. तो वो सोच रही थी कि वो उसे बताएगी कि वो जैसे उन लोगों ने उसे तंग किया था. पिक ऑन होता है कि किसी को पीछे पड़ जाना, किसी को हैरास करना. तो कह रहे कि जिस तरीके से हमने तुम्हें तंग किया था हम उस बात के लिए सॉरी चाहते हैं और हम और सारा स्कूल सोच रहा है कि तुम बहुत ही वंडरफुल और प्लीज़ यहाँ से मत जाओ. हर कोई तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा और जो भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा मैं और पैगी उससे लड़ाई करेंगे. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. वो लड़कियां तेजी से चलती गई बॉगिंस हाइट्स की तरफ और उन्होंने उम्मीद की कि अंधेरा होने से पहले वो वहां पहुंच जाएगी. I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. तो एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा मुझे लगता है कि वहां पेट्रोन्स्कीज रहते हैं. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. तो छोटे छोटे घास के पतले तिनके वहाँ पे रास्ते में इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे कि बिल्ली के छोटे बच्चों के जैसे वो लग रहे थे उनके ढेर. और जो घर था और उसका छोटा सा जो आंगन था वो भद्दा सा दिख रहा था लेकिन साफ था. और उसको देख के मैडी को याद आई वांडा की वो ड्रेस जो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, जो भद्दी तो दिखती थी लेकिन वो हमेशा साफ होती थी, मतलब उस पर आयरन नहीं की होती थी प्रॉपरली, बट स्टिल दैट वाज क्लीन. देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं है, उस घर में कोई वहाँ पे नहीं रह रहा है अभी, और हो सकता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हों. पैगी ने दरवाजे पे बड़ी मजबूती से नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया. उसके बाद वो और मैडी पीछे की तरफ गए और वहाँ भी नॉक किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? और इस बात में कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था. पेट्रोन्स्कीज वहाँ से जा चुके थे
और अब कैसे जो ये गलत हुआ है उसके साथ उसकी भरपाई की जा सके, कैसे उनके रिश्ते फिर से सुधारे जा सके। They turned slowly and made their way back down the hill. वो लोग मुड़े और धीरे धीरे वापस अपने घर की तरफ पहाड़ी से नीचे आने लगे। Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो पैगी कहती है कि देखो अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो चली गई है, और शायद मैं जब उससे उस ड्रेसेस के बारे में उसका मजाक उड़ाती थी, उससे पूछती थी, तो शायद हमारे कहने से ही, पूछने से उसको ड्रेसेस के बारे में सुंदर सुंदर आइडियाज़ मिल रहे थे, तभी उसने 100 अलग अलग ड्रेसेस बना डाली थी। और शायद अगर हम उसका मजाक ना उड़ाते तो वो ये कॉन्टेस्ट भी ना जीतती। अब मतलब पैगी जो है वो किसी तरह अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there was anything in it, she would not have to feel so badly. तो मैडी पैगी की इस बात को बड़े ध्यान से अपने माइंड में सोचने लगी, क्योंकि अगर इसमें ऐसा कुछ है कि अगर हमारा ऐसा करने से उसका कुछ भला हुआ है तो शायद वो इतनी परेशान नहीं होगी, वो सोचने लगी। But that night she could not get to sleep. लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई मैडी। She thought about Vanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. वो वेंडा के बारे में, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, और जो छोटा सा घर था उनका उसके बारे में सोचने लगी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और वो उन 100 ड्रेसेस के बारे में भी सोचने लगी कि कितनी चमकदार, कितनी शानदार पिक्चर उसने बनाई थी, कितनी ड्रेसेस बनाई थी जो क्लासरूम में लाइन में रखी हुई थी सारी उसकी ड्राइंग्स। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट that was the hardest thinking she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. तो तब लास्ट में मैडी ने क्या किया, वो अपने बेड पे बैठ गई और उसने माथा जो था टाइटली अपने हाथों के बीच में जैसे उस पर हाथ रख दिए और सोचने लगी, और बड़ी उसको मेहनत हो रही थी सोचने में, इतना उसने आज तक कभी नहीं सोचा था। और काफ़ी देर सोचने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ गलत हो रहा और मैं चुपचाप वो खड़ी सुनती रहूं। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Vanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. तो वो सोचती है कि आगे से अगर उसने सुना कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मजाकिया है या फिर उसके नेम कुछ अजीब है या फिर कुछ दिखने में वो लोग अजीब है, तो वो बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी, चाहे उसकी पैगी से फ्रेंडशिप ही क्यों ना टूट जाए। और वो सोचती है कि अब वेंडा के साथ जो गलत हुआ वो ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो जा भी चुकी है, उसे सॉरी भी नहीं बोल सकते। लेकिन आगे से मैं ये सबक लूँगी और किसी को इतना ज़्यादा नाराज़ या उदास कभी नहीं करूँगी, हर्ट कभी नहीं करूँगी। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Vanda Petronsky. Saturday के दिन जो मैडी है वो पैगी के साथ आफ्टरनून स्पेंड करती है और वो लोग वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रहे हैं। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Vanda she had won. ये एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट के बारे में बताया और ये भी बताया वेंडा को कि वो जीत गई है कॉन्टेस्ट। They told her how pretty her drawings were. और उन लड़कियों ने उसे ये भी बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर हैं। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने उससे ये भी पूछा कि क्या जिस जगह वो रह रही है उस जगह को पसंद करती है और क्या उसकी नई टीचर उसे अच्छी लगती है। They had meant to say they were sorry, but it ended up with just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. तो एक्चुअली वो लेटर के जरिए कहना तो सॉरी चाह रहे थे वेंडा से, लेकिन ऐसा लेटर उन्होंने लिख दिया जैसे कि किसी दोस्त को लिखा जाता है, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे एक्स लिख दिए, ये दिखाते हुए कि वो उन दोनों को कितना वो दोनों लड़कियों से कितना चाहती है। दे मेल द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और ये कह के उन्होंने बोगिन्स हाइट्स पे वो लेटर मेल कर दिया और उस एनवलप पे प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया, मतलब जहाँ भी उनका नया एड्रेस होगा वहाँ से उधर उनको वो लेटर पहुँच जाएगा। Days passed and there was no answer. कई दिन बीत गए और फिर भी उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। But the letter did not come back. So maybe Vanda had received it. लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। इसका मतलब लेटर जो था वो डिलीवर कर दिया गया होगा वेंडा पेट्रोन्स्की को और उसे मिल गया होगा। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. शायद वो इतनी ज़्यादा मतलब हर्ट हुई थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा थी हम लोगों से कि वो जवाब ही देना नहीं चाह रही थी, और आप उसका दोष भी नहीं कह सकते इसमें कुछ।
वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। काफ़ी वीक्स बीत गए और फिर भी वेंडा को कोई जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैरी पुट herself to sleep at night making speeches about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Mary would cry out, "Stop!" And then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और इस तरह से कई वीक्स चले गए और वेंडा का कोई जवाब नहीं आया और पैगी जो थी वो सारी बातों को भूलने लगी थी और मैडी जो थी वो अपने आप को रात को सुलाने की कोशिश करती वेंडा के बारे में स्पीचेस बना के। वो ये इमेजिन करती कि बहुत सारी लड़कियां जो है वेंडा का फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है कि कितनी ड्रेसेस उसके पास। इससे पहले कि वेंडा कुछ बोल पाती मैडी ने बोल के उन लड़कियों को चुप करवा दिया स्टॉप कह के। और उसके बाद मैडी ये इमेजिन करती कि सारी जो लड़कियां हैं वो शर्मिंदगी फील कर रही है उसी की तरह। तो इस तरीके की स्पीचेस वो रेडी करती है, मतलब वो क्या कहेगी उस सिचुएशन को, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आए तो इस तरीके से अपने आप को तसल्ली देती है और सोने की कोशिश करती है मैडी जो थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। अब क्रिसमस का टाइम था, ज़मीन पर बर्फ़ पड़ रही थी और क्लासरूम के अंदर क्रिसमस की बेल्स थी और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड एट मॉर्निंग। तो हॉलीडेज से पहले जो लास्ट डे था स्कूल का तो टीचर को एक लेटर मिला था उस मॉर्निंग, उन्होंने वो क्लास को दिखाया। You remember Vanda Petonsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. तो टीचर कहती है कि याद है तुम लोगों को वेंडा पेटोन्स्की, वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। देखो उसने मुझे अब लेटर लिखा है और मुझे खुशी है ये जान के कि मुझे उसका नया एड्रेस पता चल गया ताकि मैं उसे मेडल सेंड कर सकूं कंपटीशन का, और मैं उसका ये लेटर तुम लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। क्लास होती वो अचानक से एक इंटरेस्ट लेके बैठ जाती है और बड़े ध्यान से सुनने लग जाती है मिस मैसन की बात। डियर मिस मैसन, वेंडा लिखती है अपने लेटर में, हाउ आर यू एंड रूम 13? डियर मिस मैसन, आप कैसी है, रूम 13 कैसा है, मतलब वहाँ के बच्चे कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। प्लीज़ आप उन गर्ल्स को कह दीजिएगा कि वो ड्रेसेस रख सकती है अपने पास, क्योंकि मेरे नए घर में मुझे फिर से नए 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, सारी अलमारी में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैरी टू हैव द ब्लू वन। मैं चाहती हूँ कि जो एक लड़की पैगी है आप उसे ना ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग दे दें जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग्स है, और उसकी फ्रेंड मैरी को आप ब्लू वाली दे दीजिएगा। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। क्रिसमस के मौके पे मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ और मेरी नई टीचर आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। तो वेंडा ये लेटर लिखती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैरी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो देखिए स्पेशली जो है वेंडा ने जिक्र किया था अपने लेटर में कि जो ब्लू और ग्रीन जो ड्राइंग्स थी वो उनको मैरी और पैगी को देनी थी। तो जब वो अपने स्कूल से घर वापस आ रही है तो वो अपनी ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से पकड़े हुए घर पे आ रही है। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़। क्योंकि क्रिसमस का मौका था तो जो भी जितने घर रास्ते में थे उन्होंने क्या किया हुआ था, फूलों की मालाएं और जो एक होली एक प्लांट होता है जिसके यू कैन से शाइनी लीव्स होते हैं, तो वो उन्होंने अपनी विंडोज़ में लगाए हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्निकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। तो जो ग्रोसरी स्टोर्स थे उनके बाहर काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में जो थे क्रिसमस ट्रीज उनके स्टैक बना के रखे हुए थे ढेर काफ़ी, और विंडो के अंदर जो थे पेपरमेंट की जो कैंडी थी उसकी स्टिक्स थी। और कॉर्निकोपिया क्या होता है, एक डेकोरेटिव कंटेनर होता है जैसे शाइनी पेपर से बना हुआ था जिसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो वहाँ पर लगे हुए थे विंडोज़ के अंदर। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और हवा में जो थी क्रिसमस की सी महक आ रही थी और जो लाइट शाइन कर रही थी हर जगह वो ग्राउंड पे स्नो होने के कारण डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that. तो पैगी कहती है अरे देखो इसका मतलब वो लड़की हमें पसंद करती थी जिसने स्पेशली ये बोला है हमें ये देने के लिए ड्राइंग्स। इसका मतलब उससे हमारा लेटर मिला होगा और ये कहने का तरीका है उसका, ये जताने का तरीका है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो हमसे नाराज़ नहीं है, और यही बात है। आई होप सो सेड मैरी सैडली।
तो मैडी कहती है उदास होते हुए, कहती है मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. तो वो दुखी इसलिए थी क्योंकि उसको लगता था कि वो जो टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल थी वो अब उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी और दोबारा आपस में बैठ के वो जो गिले शिकवे हैं वो नहीं हो पाएंगे। She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर जाती है और वो क्या करती है, जो कि उसके बेडरूम की वॉल है उसके ऊपर पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर है, वो एक जगह से फटा हुआ था, उस जगह उसको और उस ड्राइंग को लगा देती है उसे छिपाने के लिए। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और भद्दा सा दिखने वाला कमरा जो था ना, उसके शानदार कलर्स के यूज से एक जिंदा हो उठा, ऐसा लगा जैसे रोशनी से। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है और ड्राइंग की तरफ देखने लग जाती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो चुपचाप खड़ी रही थी जब उसकी इंसल्ट होती थी वेंडा की, और वो कुछ नहीं कहती थी। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। और सोचती है कि फिर भी वेंडा ने तो मेरे लिए स्पेशल ड्राइंग भेजी है, मतलब अच्छा मेरे साथ बिहेव किया है। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों में आंसू आ गए ये बात सोचकर, उससे उसे मतलब दिखना मतलब ब्लर हो गए, उसकी आंखों में सही स्पष्ट नहीं दिख रहा था और वो काफ़ी देर तक उस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखने लगी। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। तब उसने जल्दी से अपनी आंखें रब की और बड़े ध्यान से उस ड्राइंग को स्टडी करने लगी, देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। कलर जो थे ना उस ड्रेस के अंदर इतने बढ़िया यूज़ किए हुए थे, इतने स्पष्ट और इतने ब्राइट थे कि उसने चेहरा तो नोटिस किया ही नहीं था उस ड्राइंग के अंदर किसका था। बट इट लुक लाइक हर मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ व्हेन आई हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। लेकिन जब उसने गौर से उस ड्राइंग को देखा, रही है तो चेहरा खुद मैडी का था उसके अंदर। इसका मतलब क्या जानबूझकर उसने वो ड्राइंग मैडी के लिए बनाई थी, स्पेशली मैडी के लिए उसने वो ड्रॉ किया था। और एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। और इस एक्साइटमेंट के साथ वो पैगी के घर जाती है दौड़ के, ये देखने के लिए कि क्या पैगी की ड्राइंग में भी उसी का चेहरा है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। वो जाके कहती है कि पैग मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ। What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. तो पैगी उससे पूछती है अरे क्या बात है। जब वो दोनों मतलब साथ ही साथ ऊपर के रूम की तरफ जा रहे होते हैं, उनके पैरों की आवाज़ें आ रही होती जाने से, तो जहाँ पे वंडा की ड्राइंग जो थी बेड पे रखी हुई थी पैगी ने। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने बड़े ध्यान से उसे उठाया उस ड्राइंग को। लुक शी ड्रू यू, डेट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। और वो कहती है देखो उसने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उसका भी जो सिर था ड्राइंग का, जो लड़की बनी हुई थी, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल पैगी के जैसा लग रहा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो पैगी कहती है देखो मैंने क्या कहा था, उस लड़की वो जरूर हमें पसंद करती थी, मतलब हमसे नफरत नहीं करती थी वो। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure and 100 of them all lined up. तो मैडी फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पलकें झपकाती है अपने आंखें जो है वो साफ करने के लिए, और फिर से वो वेंडा के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे वो लड़की स्कूल के आंगन में उस धूप में खड़ी हुआ करती थी और एक्सप्रेशनलेस जब वो लड़कियां उसके पास उसका मजाक उड़ाती थी, वो कहा करती थी कि हाँ मेरे पास बिल्कुल 100 ड्रेसेस है, सभी एक लाइन में लगी हुई। सो दिस वाज योर चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2।